बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट बीएस, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट टाटोमेरिज्म, 19th लेक्चर। देखें, टाटोमेरिज्म जो है ये बेसिकली तो हम इसे एक आइसोमेरिज्म की टाइप भी कंसीडर करते हैं, लेकिन इसे बाज़ औक़ात आइसोमेरिज्म में भी शामिल नहीं किया जाता। और दो इंटर कन्वर्टिबल इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है किसी एक कंपाउंड का, दरअसल वो जो है उसे हम टाटोमेरिज्म या टाटोमर्स कह देते हैं। So tautomerism is a phenomena in which two structural isomers differ in the relative positions of their atoms, which are in dynamic equilibrium with each other and are radially interconvertible. यानी आसानी से एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। Many of the reactions of ethyl acetate acetoacetic ester can be accounted for by the ketonic structure. जैसे ये देखें आप, CH3C डबल बॉन्ड 2 CH2 COOC2H5, क्योंकि ये एक कीटोन है तो कीटोन के ये जो एडिशन रिएक्शंस हैं, जैसे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, HCN के साथ, NH2OH के साथ, तो इसमें NaHSO3 का H जो है O के साथ और जो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ SO3 Na जो यहाँ अटैच हो जाएगा, यानी HCN एडिशन आप करेंगे तो O के साथ H और साइनाइड नीचे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ये रिएक्शन इसके शो किए हुए FSC लेवल पे आपने पढ़े हुए हैं, कीटोन के रिएक्शंस। सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करेंगे तो SO3 Na और H एक अटैच हो गया। इसी तरह HCN में साइनाइड और OH, NH2OH में भी एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस के बाद ये प्रोडक्ट इससे हमें हासिल हुआ। अच्छा, ये जो रिएक्शंस हैं इन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप कह देते हैं। एल्डिहाइड भी शो करते हैं और कीटोन्स भी। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि इसमें डबल बॉन्ड का करैक्टर मौजूद है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अनसैचुरेशन के जो रिएक्शंस हैं वो भी इसमें से हमें हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर अब इसी स्ट्रक्चर में आप देखें कि CH3C डबल बॉन्ड विद O और CH2 था, तो CH2 का एक H कहाँ शिफ्ट हो गया, OH की तरफ, और कार्बन कार्बन में आ गया डबल बॉन्ड। अब जब हम इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे तो साफ ज़रा एडिशन ऑफ ब्रोमीन, डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। This apparently dual behavior of acetoacetic ester is interpreted on the basis of that acetoacetic ester is a mixture of two radially interconvertible isomers, एक इसकी कीटो फॉर्म है और एक इसकी इनोल, इन डबल बॉन्ड के लिए और ओल अल्कोहल के लिए। ये देखें नीचे सामने आपके, यानी CH2 का एक H ऑक्सीजन की तरफ चला गया और डबल बॉन्ड जो है वो किस तरफ आ गया, कार्बन कार्बन के दरमियान आ गया। Ordinarily, acetoacetic ester contain about 7% of the enol form
and 93% of the keto form at equilibrium mixture. तो ये दोनों एक दूसरे के टाटोमर्स कहलाएंगे. The keto form is an isomer of the enol form and the two forms are interconvertible. Two such radially interconvertible isomers are called tautomers, and the equilibrium of the two radially interconvertible isomers is called tautomerism. Each pure tautomer show the reaction that would be expected from the keto or the enol form. Thus, the enol form of S2-acetic ester reacts instantly with bromine. The keto form reacts more slowly. Similarly, the enol form produces an immediate violet color with FeCl3. The keto form, however, gives the same color after some time. तो ये एक बिहेवियर इसका इस तरह से शो होता है, इसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं. So any compound that contain a group H, A, B double bond X, जैसे CH2 single bond C double bond O, is capable of existing in both keto and enol forms. Most aldehydes and monoketones contain so little of the enol form that we can regard them as having the keto structure only. The acetone contain only about 0.001% of the enol form in the pure liquid. On the other hand, acetyl acetone is about 70% enolic. ये देखें कि एसीटोन है, इसमें इसकी जो कन्वर्जन है बहुत कम है, जबकि नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि इसकी जो इंटर कन्वर्जन 70% इसमें देखें इसकी इनोल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा. Since the keto and enol forms exist as interconvertible equilibrium mixture, their isolation is difficult. A pure form in solution slowly changes to its tautomeric form until an equilibrium mixture of both forms is obtained. The stability of each isomer, however, determines the percentage of each present in the equilibrium mixture. The relative stabilities of the two forms can be calculated from the bond energies of the tautomers. Thus, the tautomers is more stable whose total set of bond energy is higher. Stability may also be achieved due to hydrogen bonding in certain enols. The stabilization of enol form of S2-acetic ester by intermolecular hydrogen bonding is possible. ये नीचे आप इसे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बास का इस तरह से एग्जिस्ट करती है. तो ये एसीटोन, एस्टल्डिहाइड, मिलानिक एस्टर, एसीटोएस्टिक एस्टर, एसिटाइल एसीटोन, बेंजोइल एसीटोन, साइक्लोहेक्सानोन, इनकी कितनी परसेंटेज कीटो फॉर्म हो सकती है ये मेंशन है. There are other type of tautomerism like phenol. क्विनोन tautomerism इसे आप कहेंगे. नाइट्रोसोक्साइम tautomerism. फिनोल है, इसमें आप देखें कि ये क्विनोन में भी कन्वर्ट हो जाए. जो इसके हाइड्रोजन है ये नीचे वाली कार्बन के साथ अटैच हो जाए. नाइट्रोसो और ऑक्साइम, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि सी और एन में डबल बॉन्ड बन जाए और एन ओ जो डबल बॉन्ड है ये किसकी तरफ चला जाए, एक्स की तरफ आ जाए. तो इसे आप नाइट्रोसो ऑक्साइम इंटरकन्वर्जन का आप इसे नाम देंगे. पर ये टाटोमेरिज्म का फिनोमिना है, इसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एक टॉपिक रिमेनिंग है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये वैसे तो आप लोगों ने इनऑर्गेनिक में भी इसे स्टडी किया, लेकिन हम इसे बहरहाल एक लेक्चर के तौर पर रिपीट कर लेंगे. ये इसे मैंने ज़्यादा
तो रीड करके आपको एक बात समझाने की कोशिश की है। इजी है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, आप आसानी से इसे खुद भी तैयार कर सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि ये कंप्लीट हुआ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।